టోటల్ బ్రాహ్మణ పరివారంలోనే సదా కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ తయారు చేస్తూ సర్వ బ్రాహ్మణాత్మలలో ఉమంగ ఉత్సాహాలను నింపేటువంటి, అంతేకాకుండా మొత్తం బ్రాహ్మణ వాళ్ళ పరివారం అంతా బ్రాహ్మణులుగా అవుతూ అనేక ఆత్మలకు ఆదర్శంగా మేము కూడా ఈ విధంగా విశాల బుద్ధితో ఆత్మ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలా అనేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేటువంటి గౌరవభక్తయ్య చేస్తూనే గుణము మరియు కళలు ఉన్నాయి. అలాంటి విశేష ఆత్మ ఈరోజు మనకు నష్టమోహ స్వరూప అనే సబ్జెక్ట్ పైన పవర్ సందేశాన్ని మనకు తెలియజేస్తారు. నేను మీ అందరితో వివరిస్తున్నాను. అందరూ కాన్సన్ట్రేషన్ గా విని దీంట్లో ఏదైతే మనకు బాబా యొక్క అవ్యక్త బాబ్దాదా యొక్క మధుర మహావాక్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అయితే దీన్ని మీరు శ్రద్ధగా వింటూ దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఆచరించి బాబా ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తున్నారో ఆ విధంగా బాబాను ప్రత్యక్షం చేసే సేవలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ రోల్ నష్టమోహ స్మృతి స్వరూప. ఎంతెంత నాకు బేహద్ వైరాగ్యం వస్తుందో అంతంతే నేను నష్టమోహగా అవుతాను. నష్టమోహగా అయినప్పుడే నేను ఎంత పవర్ఫుల్ థాట్ చేస్తానో, ఎవరి కోసం చేస్తానో, ఎక్కడ చేస్తానో అది సఫలీకృతం అవుతుంది. అందుకోసం విశేషంగా మనసా సేవకు బేసిక్ గా ఉండేటువంటి నష్టమోహ స్మృతి స్వరూప అన్న ఒకటే, బాబాతో సర్వ సంబంధాల ప్రేమను పొందడం అన్న ఒకటే, మరియు 18 అధ్యాయుల గీత సారాంశము నష్టమోహ స్మృతి స్వరూప. దేహము దేహ సంబంధికులు అందరినీ మర్చిపోయి కేవలం నన్ను నేను ఆత్మ అని తెలుసుకుంటూ నా తండ్రి అయిన బాబాతో సంపూర్ణ సంబంధాలు ఉంచడమే నష్టమోహ స్మృతి స్వరూప. కాబట్టి మీరు ఆ యొక్క క్లాస్ ని ఇంపార్టెంట్ క్లాస్, మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. కాబట్టి మీరు ఎవ్వరూ అసలు ఎక్కడ పక్కకి వెళ్లకుండా జస్ట్ ఆన్ చేసి మీ కార్యక్రమాల్లో ఉండకుండా కాన్సన్ట్రేషన్ గా అక్కడే కూర్చుని విని ఏదైతే తెలిపిస్తున్నారో దాన్ని మన జీవితంలో ఆచరించాలి అనే దృఢ సంకల్పంతో మనం అందరం విందాం. సౌరభక్క యొక్క నేను మహిమ ఎంత చేయాలన్నా ఉంది. 36 years నుంచి నాలెడ్జ్ లో ఉన్నారు. 26 సంవత్సరాల నుంచి చిన్న బిడ్డప్పటి నుంచి జ్ఞానంలో ఉన్నారు. అక్క, అమ్మ, నాన్న, పరివారం అందరూ మదర్ టంగ్ తెలుగు అయిన దాని కారణంగా విశేషంగా నేను చెప్పిన వెంటనే అక్క తెలుగులోనా అన్నారు. అయినా కొంచెం మనందరికీ అర్థమవుతుంది అక్క వాళ్ళ తెలుగు. కాబట్టి మీరేం ఆలోచించవద్దు. ఆ తర్వాత హిందీలో పీపీటీ షో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు దాన్ని చూస్తూ స్లైడ్స్ ని తర్వాత అక్క వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వినండి. అక్క 26 సంవత్సరాలు నా సమర్పణమై అన్నారు. కానీ అది బేసికల్ గా చిన్నప్పటి నుంచినే, చిన్న బిడ్డప్పటి నుంచినే అక్క వాళ్ళు ఫ్యామిలీలో మొత్తం బాబా పరివారంలో ఉన్నారు. మీ అందరికీ తెలిసి గిలిగిలి మ్యాజిక్ షో అక్క వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెన్షనే. తర్వాత అనేక ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ప్రతి శ్వాస, ప్రతి సంకల్పము, ప్రతి మాట, ప్రతి కర్మ, ప్రతి పాదం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ సేవ 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 సేవ, ఆల్వేస్ సేవ కోసం పరితపించే విశేష ఆత్మ, బాబాను ప్రత్యక్షం చేసే సేవలో విశేష పాటుదారి ఆత్మ. అందుకోసం నేను అక్కని హృదయపూర్వకంగా పుట్టపర్తి సంబంధిత సేవా కేంద్రాల వైపు నుండి మరియు సరెండర్ అక్కయ్యల వైపు నుండి సర్వ బ్రాహ్మణ పరివారం వైపు నుండి నేను స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం. అక్క వాళ్ళ సమయం ఎక్కువ తీసుకోకుండా మనం అక్కకి ఆహ్వానం చేస్తాం. దాని తర్వాత అందరూ విని అక్కకి రిజల్ట్ చెప్తారని నా ఆశ, ఆకాంక్ష. ఓం శాంతి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ओम शांति अक्का, थैंक यू सो मच. आपने हमें इस सेशन में बुलाया, लेकिन मैं सबसे माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं कर्नाटका में पली बड़ी हूँ, तो कन्नड़ा में सब सीखा है. घर में तेलुगु भाषा है लेकिन फिर भी कन्नड़ा मिक्स तेलुगु है, तो इसीलिए मेरा तेलुगु बहुत ही आप लोगों को
हंसने मना हंसाने वाला तेलुगु हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं बाबा की ये सब जो भी बातें हैं, पुरुषार्थ की बातें, तो हम बाबा की लैंग्वेज में ही सुनेंगे। और सिंपल है, ज्यादा कोई मुश्किल वाला नहीं है, तो इसलिए हम हिंदी में ही बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा तेलुगु इतना अच्छा नहीं है। फिर भी लास्ट में थोड़ा कुछ तेलुगु में ट्राई करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। तेलुगु जैसा भी हो चलेगा, हमको थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा हो ही तो चलेगा, लेकिन कभी हिंदी नहीं सकते हैं इसलिए। हाँ, वैसे तो मैं समझती हूँ सभी को हिंदी आता होगा डेफिनेटली। और लक्ष्मी अक्का को हम बहुत साल से जानते हैं, और हम पुष्पका को भी बहुत अच्छे से जानते थे, और हम खुद भी आए थे आपके वहाँ के धर्मावरम, पुट्टपर्ती और सब जगह हम मैजिक शो के बहाने हम आए थे वहाँ, और उससे भी पहले एक बार ये अकाउंट्स के लिए भी आए थे। तो ऐसे आप लोगों के साथ हमारा शुरू से कनेक्शन तो है ही, और जैसे ही लक्ष्मी अक्का ने कहा हमें ये करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। और लक्ष्मी अक्का ने तो हमारी बहुत ज्यादा महिमा कर दी, ऐसी कुछ इतना ज्यादा नहीं है, सब कुछ सारा क्रेडिट बाबा को जाता है। और क्योंकि वही हम हर एक को, जैसे वो शिल्पीकार है और हम सब मूर्तियों को वो बना रहा है, बस हमें उनके सामने बैठना है, वो जैसा जैसा बनाता जाएगा वैसे वैसे हम बनते जाएंगे, बस हमारा काम है उनके सामने बैठे रहना। तो इसीलिए हमें ऐसा मौका मिला आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। तो आज हम वो सब बातें शेयर करेंगे। हाँ अक्का, हम शुरू करें? श्योर श्योर श्योर, 1 minute 1 minute. అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు దయచేసి ఎవరెవరి వీడియో ఆన్ చేసుకోవద్దండి, ఓన్లీ ఆడియో ఆన్ చేసుకొని వినండి. ఎందుకంటే వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే మీ వీడియో క్లాస్ యొక్క వీడియో ఆన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మీ వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ అక్క వాళ్ళ వీడియో తర్వాత ఆడియో సరిగ్గా రాదు. కాబట్టి మీరు దయచేసి మీరు ఆన్ చేసుకునేటప్పుడు మామూలుగా రోజు క్లాస్ లో ఏ విధంగా ఆన్ చేసుకుంటారో అలాగే ఆన్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ओके। और आप जब मोबाइल लेंगे वो आप सीधा नहीं पकड़ना, मोबाइल को आड़ा पकड़ लेना, तभी आप మొబైల్ అద్దం పెట్టుకోండి, మొబైల్ అద్దం పెట్టుకోండి, నిలువుగా పట్టుకోవద్దండి. तो आपको सब तभी इजीली दिखाई देता है। अच्छा, तो बाबा मुरलियों में हमेशा कहते रहते हैं कि हमें नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा स्थिति हासिल करनी चाहिए, वो स्थिति हमें पहुंचना चाहिए, तभी हम पास विद ऑनर हो सकते हैं और उसके बाद हम देवता बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थिति है नष्टो मोहा स्थिति। जिस स्थिति को पाने के लिए भक्ति मार्ग में भी साधु संतों ने बहुत कठिन साधना की, तपस्या किया है। लोगों को लगा कि घर गृहस्थ में रहते हुए मोह मुक्त होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके बीच में रहते हुए, सब कुछ करते हुए ये सब कुछ भूल जाना और इस मोह से मुक्त हो जाना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए उन साधु संतों को लगा, जब वो घर गृहस्थ में थे तो उनको लगा कि ये तो इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन लोगों ने घर गृहस्थ व्यवहार सब कुछ छोड़ के जंगलों में गए, और जंगलों में भी उन्होंने बहुत कठिन साधना किया, जैसे उपवास किया, एक टांग पर खड़े होके बहुत मेहनत किया। इसीलिए मेहनत किया ताकि माना उनको कुछ भी पिछले बातें, पुरानी बातें कुछ भी याद ना आए, तो इसीलिए आंखें बंद करके घोर तपस्या की। इतना तपस्या करने के बाद भी कुछ सन्यासी तो, कुछ साधु संतों ने तो
इसी साधना में शरीर छोड़ दिया। और कुछ साधु संतों ने करते करते, साधना करते करते भी, बहुत सालों की साधना के बाद भी, जैसे हम स्टोरीज में सुनते हैं कि कोई रंभा हो, तिलोत्तमा हो, या कोई भी ऐसे अप्सराएं जब उनके सामने आते थे तो आंखें खोलते देखते ही आकर्षित हो जाते, और इतने सालों की तपस्या उनकी सब भंग हो जाता, माना सब टूट जाता। माना इतना मेहनत करने के बाद भी उनके अंदर जो आकर्षण है, माना दुनिया के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, या जो मोह माया या मोह ममत्व हम कहते हैं, वो तो टूटा ही नहीं था। जैसे ही देखा माना आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए, अटैच हो गए, फिर संसार छोड़ के, गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बने, फिर उसके बाद फिर से संसारी बन गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं। तो कहने का मतलब, ये मोह मुक्त होना इतना आसान नहीं है मेहनत। लेकिन क्योंकि उस टाइम हमें सही रास्ता नहीं मालूम था, कैसे करना है, कैसे मोह मुक्त बनना है, निर्मोही कैसे बने, या नष्ट मोह कैसे बनना है, वो प्रॉपर डायरेक्शन, गाइडेंस किसी का नहीं था। तो इसीलिए बहुत मेहनत लगता था। लेकिन अब जब भगवान खुद धरती पर आए हैं और वो खुद हमें गाइड करते हैं, तो अब तो इजी है। अब तो हम लोगों को किसी को नहीं कहा कि आप घर गृहस्थ छोड़ो, संसार व्यवहार छोड़ो और जंगलों में जाओ, ऐसा कभी बाबा ने नहीं कहा। ये उल्टा बाबा ने कहा कि आप घर गृहस्थ में ही रहो, अपना सब कुछ संभालो, लेकिन उसके बीच में रहते हुए, जैसे कमल पुष्प के समान, हमें भी संसार के कीचड़ में रहते हुए भी कमल पुष्प समान हमें न्यारा और प्यारा होकर रहना है। और किसी बात से हमें ना अट्रैक्ट होना है, ना अटैच होना है, हमें तो न्यारा और प्यारा रहना है। तो ये कैसे, तो बाबा ने मुरलियों में हमें बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिया है। तो उन्हीं गाइडलाइंस को या उन्हीं महावाक्यों को लेकर के ये कुछ स्लाइड्स बने हुए हैं। तो वैसे तो नष्ट मोहा के बारे में मैं जब पढ़ने लगी मुरलियों में, तो वो तो बहुत है, ऐसे तो कहते जाएं तो बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन हम कुछ ही इम्पोर्टेंट चीजें, बातें स्लाइड्स में हमने डाला है, तो उन्हीं बातों को लेके आज हम कुछ विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो भक्ति में भी हमने सुना है, श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 15 और 5वां श्लोक में यही कहा गया है कि जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक इंद्रियों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है। माना कहने का मतलब, जिनका मोह और मान नष्ट हो गया, माना जिनके अंदर जो आसक्ति या अट्रैक्शन जो है वो नष्ट हो गया या उन पर जीत पा लिया, तो वही लोग माना इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होने वाले ज्ञानी जन ही श्रेष्ठ परम पद को प्राप्त करते हैं, ऐसे उसमें भी कहा गया है। और साथ साथ गौतम बुद्धा, उन्होंने भी कहा, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। माना हमारे जो भी दुख है हमारे जीवन में, उन सब दुखों का मूल कारण ही अटैचमेंट है, आकर्षण या कहे या मोह हम कहे, तो मोह के कारण ही हमारे जीवन में बहुत दुख है, ऐसा उन्होंने भी कहा। तो ऐसे बहुत महापुरुषों ने या धर्म स्थापकों ने, धर्म गुरुओं ने, बहुत लोगों ने कहा तो है बहुत कुछ, मोह को कैसे जीता जाए या मोह के ऊपर विजय हम कैसे प्राप्त करें, लेकिन लोगों को वो सब मुश्किल ही लगता गया। घर गृहस्थ में रहते हुए मोह मुक्त होना
किसी से पॉसिबल हुआ नहीं, सबने घर गृहस्थ छोड़ के ही बाहर गए। लेकिन एक शिव बाबा है जिन्होंने हमें घर गृहस्थ में रहते हुए मोह मुक्त होने के लिए हमें बहुत अच्छे विचार हमारे सामने रखे हैं। तो हम बाबा के ही कुछ महावाक्य सुनेंगे। मोह तब आता है, मोह तब जाता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। जब हम सोचते हैं कि ये मना हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, ऐसा सोचने से ही मोह उत्पन्न होता है या मोह शुरू होता है वहां से। ये तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते। तो बाबा का यही कहना है कि हम सोचते कि अगर हम अपना घर, अपना परिवार ऐसा नहीं सोचते हैं तो कैसे हम अपना फर्ज निभा सकते हैं। तो इसीलिए सोचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि निभाना तो हमें ही है। तो ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो। तो कहने का मतलब जो आपके आंखों के सामने या आपके आजू बाजू जो आपके फैमिली मेंबर्स है, तो केवल उन्हीं को अपना फैमिली नहीं समझना। जो आपके आंखों में नहीं दिख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में रहते हैं, जो सब बाबा के या भगवान के बच्चे हैं, वो भी तो हमारे अपने ही तो परिवार के। तो सामने जो रहते हैं या हमारे आसपास में जो रहते हैं, हमारे लौकिक फैमिली जो है, वो हमारा, हमें उनके लिए सेवा तो जरूर करना है, वो फिजिकली सेवा उनकी करनी पड़ेगी, लेकिन मन में तो हम सबके प्रति तो अच्छी भावना रख ही सकते हैं, सबके प्रति अपना परिवार की भावना तो रख ही सकते हैं। तो यही तो बाबा कहते हैं आप बेहद की जिम्मेवारी को याद करो कि मुझे पूरे दुनिया हमारी परिवार है और उन सबको भी मुझे देखना है या उन सबके लिए भी मुझे कुछ सेवा करना है। तभी बाबा कहते हैं आपकी लौकिक जिम्मेवारी भी उसमें पूरी हो जाएगी। हम क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं और हम अपने ही लौकिक जिम्मेवारियों के ऊपर ही सोचते रहते हैं, जिस कारण बाबा कहते हैं आप प्रॉपरली निभा नहीं पाते हो, उल्टा बिगाड़ ही देते हैं। तो इसीलिए बहुत हमें सोच समझ कर करना है। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वो निभाना व संभालना नहीं है, और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती, जो फिर वो आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। तो हम तो सोचते हैं कि हम तो फर्ज निभा रहे हैं, कर्तव्य संभाल रहे हैं, लेकिन बाबा का कहना है कि वो निभाना व संभालना नहीं है, और ही एक्चुअली हम हद की स्मृति में जितना रहते हैं तो उतना हमारा स्वभाव संस्कार भी बहुत हद के हो जाता है, या इस दुनियावी माना रूहानियत हम भूल जाते हैं और लौकिकपना हमारे अंदर आ जाता है। तो जैसे लौकिकपना आता है तो फिर उसमें सारे विकार है या पुराने स्वभाव संस्कार सब प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लौकिक फैमिली मेंबर्स भी क्या हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे ये तो आश्रम में जाते हैं फिर भी हमारे जैसे ही गुस्सा करते हैं, हमारे जैसे ही बर्ताव इनका रहता है, तो हमारे और इनके बीच में क्या फर्क है, तो हम क्यों जाएं आश्रम में, क्योंकि ये जाके तो इनका तो कुछ उद्धार तो नहीं हुआ, इनको तो कुछ मिला नहीं, इनके अंदर कोई चेंजेस तो हम नहीं देखते हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊं। तो ऐसा करके उनके अंदर माना आश्रम में आने का या भगवान से जुड़ने का विचार ही नहीं आता, और ही जैसे कि वो सोचते कि नहीं जाना ही अच्छा है। तो लेकिन उनके मन में ऐसे विचार क्यों आया, क्योंकि हमारे
स्वभाव ऐसा था जो ठीक नहीं था, हमारा लौकिकपना ज्यादा था, इसीलिए उनके अंदर ऐसा है। तो माना उनको भगवान से कनेक्ट करने से हम लोग ही वंचित कर रहे हैं, तो वो भी तो पाप या बोझ हमारे सिर पर चढ़ेगा ना। तो इसलिए हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना है। बाबा कहते तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा देते। ये मोह का मर्ज है, और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो वो फर्ज बदल करके मर्ज का रूप हो जाता है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। तो हम क्या करते हैं, फर्ज नाम तो फर्ज का लेते हैं कि ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये तो मुझे ही करना है, ऐसा कहते हुए उसमें हम मोह को मर्ज कर देते। एक्चुअली भावना उसमें मोह की भावना रहती है, लेकिन नाम हम फर्ज का दे देते। तो एक्चुअली ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा जो मोह फर्ज में मर्ज हो जाता है, तभी वो उससे सभी को तकलीफ होता है, उससे कोई आपको लाभ नहीं मिलता। उल्टा आप जितना भी करोगे लोग संतुष्ट ही नहीं होंगे, उल्टा आपको कंप्लेंट ही करते रहेंगे। तो इसके बजाय हम उन लोगों को अपना परिवार, मेरा परिवार या मेरा घर समझने के बजाय, या तो हम ऐसा समझे ये सब बाबा के बच्चे हैं और मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, बस मैं इन लोगों की सेवा में यहाँ हाजिर हूँ। और दूसरा ये बात समझे कि केवल इन्हीं लोगों का नहीं, पूरी दुनिया मेरी परिवार है, तो इसलिए सबकी सेवा में हम यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे समझने से माना ऐसे हमें अपनी स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मोह जाल अपने लिए बनाते जाते, जैसे मकड़ी होता है, अपना जाल वो बड़ा करके बुनता जाता है, बड़ा होता जाता है, और आखिर में खुद वो मकड़ी ही फंस जाता है। तो ऐसे हम लोग भी अपने जीवन में क्या करते हैं कि हम भी एक एक जैसे हम सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये लोग मेरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा सोचते हैं, तो एक और जाल बना रहे हैं। और साथ में अगर हम सोचते ये मेरा घर है, मैंने बहुत मेहनत करके घर बनाया, तो बहुत मेहनत किया, तो इसके जैसे कि हर एक दीवार पर, जैसे हर एक फर्नीचर पर जैसे कि मेरा अधिकार है, मैंने मेहनत से बनाया, ऐसा सोच सोच के हम उससे भी बहुत अटैच्ड हो जाते। फिर हम अपना ही जो प्रोफेशन है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे भी बहुत अटैच्ड हो जाते, और हमको अगर कोई अवार्ड्स मिला है तो उससे भी हम अटैच हो जाते। फिर जो पैसा हम कमाते हैं तो वो भी देख देख के यूज करते करते तो उस पर अटैचमेंट हो जाता, या फिर हमारे जो जेवर है, ऑर्नामेंट्स है, उस पर भी अटैचमेंट हो जाता, या कार बाइक है, जो भी वस्तु है। तो एक एक वस्तु को यूज करते करते मेरापन से यूज जब करते हैं, या मेरा मेरा कह के या सोचते हुए हम यूज करते हैं, तो उसके साथ हमारा अटैचमेंट बनता जाता है। तो हमारा अटैचमेंट यूज करने से नहीं बनता है, लेकिन मेरा मेरा सोचने से वो अटैचमेंट ज्यादा होता जाता है। तो इसीलिए तो हमारे सोच में हमें परिवर्तन लाना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने हासिल किया है। नहीं, हमें इतना ही सोचना है कि ये भगवान की कृपा से मुझे मिली है, पुण्य कर्मों के आधार से मिली है, और मैं आत्मा निमित्त हूँ इसको यूज करने के लिए। इन सब साधनों को मुझे विश्व सेवार्थ यूज करना है, स्वार्थ के वश यूज नहीं करना है। तो ऐसे हमारी सोच अगर बेहद का हो तो क्या होगा, तो कितनी भी चीजें हम यूज करते जाएं तो भी हमारा अटैचमेंट उनसे नहीं जुड़ता है, अटैचमेंट नहीं बनता, वो मोह जाल नहीं पैदा होता है।
तो इसीलिए हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना है। तो अगर ज्यादा हमारा अटैचमेंट किसी चीज से होता जाता है तो क्या होता, उसका रिजल्ट क्या होता। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति के साथ हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, अगर हम इसको फिजिकली भी देखें, अगर एक व्यक्ति के साथ मैं अपना हाथ जो है टाइटली बांध लूं, एक रस्सी से एक व्यक्ति के साथ मेरा पूरा हाथ उनके उनके हाथ से मैं बांध लूं और फिर हम चलने लग पड़े, तो क्या होगा, बाई चांस अगर वो व्यक्ति फिसल जाता है तो साथ में हम भी फिसल जाते, क्योंकि हम इतना टू मच अटैच्ड हो गए हैं। पूरा हाथ जैसे कि हमारा अटैच्ड हो गया, तो वो व्यक्ति गिरता है, फिसलता है, तो हम भी उसके साथ गिर ही जाते हैं। तो ये होता है अटैचमेंट का नतीजा, रिजल्ट। क्योंकि जितना अटैचमेंट है उतना ज्यादा कनेक्टेड है हम, उतना उनके अंदर जो कोई भी ऊपर नीचे होता, जो कुछ भी उनके अंदर चेंजेस होता, वो सारा चेंजेस हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो खुशी होते, माना वो खुश है, वो हंसते हैं, वो बहुत माना आनंद में है, तो हम भी उनकी खुशी को देखते हुए हम भी खुश रहते हैं। अगर वो लोग रोते हैं तो हम भी उनके साथ साथ रोने लग पड़ते। तो ये होता है अटैचमेंट। जैसे जैसे उस व्यक्ति में चेंजेस आता जाता, उनके अंदर गुस्सा आता तो हमारे अंदर भी गुस्सा आता, वो डाउट करते हैं तो हम भी डाउट करना शुरू करते हैं। तो माना इतना टू मच अटैचमेंट के कारण तो उनका ही कंडीशन हमारे ऊपर भी आ जाता है। अगर इसके बजाय अगर मैं थोड़ा डिटैच्ड रहूं, केवल, वैसे तो हमें सबको छोड़ के दूर तो नहीं भागना है, रहना तो साथ में है, लेकिन इतना टू मच कनेक्टेड भी नहीं होना है। बस एक हाथ जितना ही मैंने कनेक्ट किया, मेरा जो पाव है, माना जो हाथ है, तो मेरा इतना ही हाथ में अगर उनके हाथ में दूं तो उतना ही मैं कनेक्ट हो जाऊं, तो क्या होगा, बाई चांस वो व्यक्ति गिरता है तो मैं नहीं गिरूंगी, क्योंकि मैंने केवल हाथ ही पकड़ा है, पूरा नहीं बांधा है पूरा शरीर को उनके साथ। तो क्या होगा, मैं उनको हाथ दे करके ऊपर उठा सकती, नहीं तो उठा नहीं पाएंगे ना, हम खुद भी तो गिर ही जाएंगे। तो ऐसे अगर हम डिटैचमेंट के साथ रहे या मोह से मुक्त हो जाए या निर्मोही रहे तो हमें बहुत फायदा है। साथ में भी रह सकते हैं, लेकिन हम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, हम अपने स्थिति में रहते हुए उनको भी ऊपर उठाने की मदद हम कर ही सकते। तो इसलिए हमें मोह से मुक्त होने की पूरा पुरुषार्थ अवश्य करना है। तो हमें अभी कैसे पता चले कि मेरे अंदर मोह है या नहीं, कैसे? क्योंकि मोह जो है बाहर से तो दिखता नहीं, मोह एक विकार है, तो वो तो अंदर ही रहता है, अपने सर में रहता है। तो कैसे चेक करें? कुछ लक्षण जो है उसके आधार से हमें पता चलता कि हमें इस व्यक्ति के साथ मोह है या नहीं, या इस वस्तु के साथ मेरा मोह है या नहीं। तो हम एक एक साइंस को देखेंगे, वैसे तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही साइंस हमने लिस्ट आउट किया है। तो एक है फियर ऑफ लूजिंग, माना अगर किसी के प्रति हमारा बहुत ज्यादा मोह है तो हमें एक तो डर लगता है कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चले जाए, कहीं हम उनको खो ना दे, कोई और बीच में हमारे बीच में घुसना, माना घुसे नहीं, या हमें कभी कोई सेपरेट ना कर जाए। तो ऐसा करके हमें हमेशा जैसे कि लगता है कि कभी हम उनको खो ना दे, माना कभी वो हमसे दूर हो जाएंगे, ऐसा डर कभी 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 क्या यूजुअली अपने मन में रहता है। वो कब रहता है? जब मोह ज्यादा रहता है, तभी ये खोने का डर भी उसके साथ साथ रहता है। तो अगर मुझे किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा डर है
कि ये मुझे कभी छोड़ के चले जाएंगे, या इनका अगर मृत्यु हो जाए तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा अगर बहुत ज्यादा डर है तो इसका मतलब हमें उस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और दूसरा है पॉजिटिव नेचर होता है। हम जिसको बहुत चाहते हैं या जिसके साथ हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो हम जैसे कि उनके ऊपर पॉजिटिव हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जैसे मेरे हाथ में रहे, मैं उसको टाइटली पकड़ के रखूं ताकि ये कभी मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो ऐसा करके हम अपना पूरा ही ताकत लगा देते हैं उन पर, ऐसे जैसे कि हम जैसे कहे वैसे ही वो चले, हमारी जो इच्छाएं हैं उसी प्रकार के अनुसार वो चले। तो ऐसा हम उनके ऊपर कंडीशन डालते रहते कि ये ऐसे ही करो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, तभी आप सेफ रहोगे, तभी आप अच्छे रहोगे। ऐसा कहते कहते हम उनके ऊपर जैसे कि बंधन डालते रहते। तो जैसे कि हम टू मच पॉजिटिव हो जाते। अगर इतना ज्यादा पॉजिटिव होते हैं तो और भी एक लक्षण है कि उनको कोई और उनसे बात करे तो हमें पसंद नहीं आता, या वो किसी के साथ उठना बैठना करे तो भी हमें पसंद नहीं आता। अगर कोई वस्तु है और उनके ऊपर हमारा ज्यादा पॉजिटिव नेचर है, हम उस वस्तु को हाथ लगाने नहीं देंगे, किसी को यूज करने के लिए भी नहीं देंगे। हम उसको कुछ भी स्क्रैच होता है, कुछ भी होता है तो हमें बहुत जैसे कि दुख हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं कि हमारे अंदर मोह है, ये दिखाता है। तो इसलिए इन लक्षणों को देखते हुए हमें तो सतर्क रहना है कि मेरे अंदर मोह है या नहीं, चेक करते हुए हमें चेंज करना है। और तीसरा है सौरो है, माना जितना मोह उतना दुख। तो मोह से जो सुख मिलता है वो बहुत कम समय के लिए मिलता है, बहुत ही कम टाइम खुश रहते हैं हम उनके साथ। जैसे ही उस व्यक्ति में थोड़ा भी बदलाव आया, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा भी उनके इमोशंस माना ऊपर नीचे हुआ, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता। और हम सोचते ये मेरे अनुसार तो नहीं करते हैं, ये मेरे अनुसार तो नहीं चलते हैं, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा तो ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा सोच सोच के दुख ही ज्यादा होता है। तो मोह से बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए हमें देखना है, हमें किसी व्यक्ति के कारण बार बार दुख होता है, हमें चेक करना है कि कहीं ना कहीं मोह की रगें हमारी उनके साथ बंधी हुई है, इसीलिए तो हमें दुख होता है, खींचातान होता है। चेक करना। और चौथा है कि हम योग कर ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि क्योंकि योग में जब भी बैठते हैं तो हमें परमात्मा याद नहीं आते, बाबा को याद करना मुश्किल होता है। जिनके साथ मोह है, जिनके साथ मोह है वही बार बार याद आता रहता, उनकी ही बातें याद आती रहती। या हम किसी के साथ भी बात करने लगते हैं तो उनकी ही बातें करते रहेंगे, ये भी एक लक्षण है। तो इन सबसे हमें समझ में आता है कि मोह अपने अंदर है। वैसे मोटे रूप से देखें तो हमें लगता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी से मोह नहीं। हम ऐसे ऊपर ऊपर से चेक करके सोच लेते हैं कि मोह नहीं है, लेकिन बहुत डीप रूटेड अगर हम चेक करें, गहराई से अगर हम चेक करें, तभी हमें समझ में आता कि ये हमारे अंदर अभी भी मोह है। नहीं तो हम तो जैसे संपूर्ण हो गए होते, अभी भी है, वो कहाँ है, तो वो चेक करते करते हमें चेंज करना चाहिए। और मोह जितना होता है तो क्या होता, हम जैसे कि उस व्यक्ति को अपने हाथ में रखना चाहते। जैसे कि पहले जमाने में हम सुनते थे ना, कोई दो राजाएं होते थे, उनको अगर कोई व्यक्ति पसंद आता या कोई वस्तु पसंद आता तो वो क्या करते, उनको लाके अपने ही पैलेस में रख देते। उनको सब सुविधाएं देंगे, लेकिन वो चाहते कि ये हमेशा मेरे नजर के सामने ही रहे, ये हमेशा मुझे दिखते रहे, या
मैं जैसे कहूँ वैसे ही ये चलते रहे, तो ऐसा करके उनको बंधन में रखते थे। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या करते, कभी कभी अगर किसी को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं या कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई और व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो क्या होता, तो हम जैसे कि टू मच पॉजिटिव हो जाते और अपने ही बंधन में उनको डाल देते। तो ये भी तो मोह का ही रूप है। हम सोचते हैं नहीं नहीं, हमें तो बहुत प्यार है, हम इनकी सेफ्टी चाहते हैं, तो इसीलिए हमने इनको सारी व्यवस्था करके दिया है। ऐसा कहने के लिए हम कहते हैं, लेकिन अंदर में वो प्यार नहीं है, वो मोह है। प्यार और मोह में, स्नेह और मोह में बहुत डिफरेंस है, जो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन स्नेह का अगर रूप होता तो क्या होता, दूसरे व्यक्ति का जो स्वभाव संस्कार हो या उनका जो फीलिंग्स या इमोशंस हो, वो हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। अगर मोह है तो वो रोएंगे तो हम भी रोएंगे, वो खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। तो ऐसे स्नेह और मोह में भी बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए हमें समझना है कि मेरे अंदर किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह है या मोह है। मैं प्यार के नाम से मोह तो नहीं रख रही हूँ, या मोह से तो जुड़ तो नहीं गई हूँ किसी के साथ। ये बार बार हमें चेक करना है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। ऐसा कहते हैं, है ना, जितना मोह ज्यादा होता तो हमें उनके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी से बुराइयां है तो वो कभी दिखता ही नहीं है। हम उनको जस्टिफाई ही करते रहेंगे, हम समर्थन ही करते रहेंगे कि हाँ वो ठीक है, कोई हर्जा नहीं तो क्या हुआ, ऐसा करके हम उनके तरफदारी ही करते रहेंगे, उनके साइड ही लेते रहेंगे दूसरों के साथ जब बात करते हैं। क्योंकि हमें इतना मोह के कारण, जैसे कि वो बुराइयां हमें बुराई जैसे नहीं लगता, हमें लगता है ये भी होना चाहिए। जैसे हम महाभारत में भी सुनते हैं, धृतराष्ट्र को कितना पुत्र व्यामोह था, इतना पुत्र व्यामोह में वो अंधा हो गया था। तो इसीलिए तो उनको स्टोरी में भी क्या दिखाया, अंधे व्यक्ति के रूप में ही दिखाया है। इसीलिए दिखाया क्योंकि वो मोहवश अंधा हो गया था, उनको सही क्या है गलत क्या है ये भी नहीं समझ में आ रहा था। उनको लग रहा था कि दुर्योधन को वही राज्य मिलना चाहिए, वही राजा बनना चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी वो करे वो सब सही ही। उनको कभी वो अधर्म है, वो अन्याय है, वो पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा कभी लग ही नहीं रहा था, क्योंकि वो अंधा हो गए मोह के वश। जैसे कि मैं आपके सामने अभी एक बुक दिखा रही, तो ये जो बुक है, अभी इस बुक में जो भी टेक्स्ट माना लिखा हुआ है, अगर मैं इतना दूर पकड़ू तो मुझे दिखाई देगा ना, पढ़ सकती हूँ मैं। अगर मैं और नजदीक लाऊं और नजदीक लाऊं और नजदीक लाऊं तो और नजदीक लाऊं, तो अभी मुझे इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कुछ भी पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। क्योंकि कुछ पढ़ने के लिए भी तो कुछ तो दूरी चाहिए। इतना नजदीक एकदम जैसे कि आंखों पर रख देते हैं तो क्या दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना अच्छाई दिखाई देता ना बुराई दिखाई देता। तो हम भी क्या करते हैं, मोह के वश किसी व्यक्ति के साथ इतना क्लोज हो जाते कि हम उनकी बुराइयों को भी नजरअंदाज करने लग पड़ते। एक तो उनकी बुराइयों से उस व्यक्ति को भी नष्ट होता, उस व्यक्ति को भी नुकसान होता, हमें भी नुकसान होता, और साथ साथ हमारे आजू बाजू रहने वालों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन हम ये कुछ भी सोच ही नहीं पाते। मोहवश हमारा बुद्धि जैसे कि सोचना ही, काम करना ही बंद कर देता है। इसलिए मोह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पता नहीं चलता, इतना आसानी से समझ में नहीं आता, इतना जल्दी लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे अंदर मोह है। अगर मोह खत्म हो जाता है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है।
चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो, ये जिंदगी। तो जैसे ही मोह खत्म हो जाता, खोने का घर भी उसके साथ खत्म हो जाता। है तो ठीक है, अच्छा है, यूज करेंगे। अगर नहीं है तो कोई हर्जा नहीं, नो प्रॉब्लम, उसके बिना भी हम जी सकते हैं। हम जब आए इस दुनिया में थोड़ी ना हम वो सारे चीजों को, लोगों को सब लेके आए थे। वो सब यहाँ ही मिले और यहाँ ही हमसे दूर हो जाएंगे तो क्या। तो हम तो अकेले आए और वापस भी हमें परमधाम अकेले ही जाना है, भर के जाना है। तो इसलिए हमें कोई भी वस्तु खोने का या व्यक्तियों को खोने का डर नहीं होना चाहिए। तो जैसे मोह खत्म, डर भी खत्म हो जाता। तो अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा कहते, जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो हमें तो परिवार में ही तो रहना है, ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ के सेंटर में आ जाना है। ऐसा तो बाबा ने कभी कहा नहीं। पुरानी दुनिया में रहना है, लौकिक वालों के साथ रहना है, लेकिन रहते रहते उन्हीं लोगों के मोह में फंस तो नहीं जाते हम। ये चक्कर, जैसे कमल पुष्प कीचड़ में ही पैदा होता है, कीचड़ में ही बड़ा होता है, फिर भी कीचड़ से वो न्यारा रहता है। बिल्कुल भी कीचड़ का कोई नाम निशान कमल पुष्प में दिखता नहीं है। वो कितना शुद्ध, कितना क्लीन, कितना अच्छा सुंदर दिखता है। ऐसे ही हमें इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी, संसार रूपी सागर में रहते हुए भी, हमें तो हमारे अंदर सागर नहीं होना चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए। जैसे बोट है, बोट ऐसे अगर आप मिट्टी के ऊपर रखो या धरनी के ऊपर रखो तो बोट नहीं काम करता। बोट को तो हमेशा पानी में ही वो काम करता है, पानी में ही वो आगे चलता है। तो ऐसे पानी के अंदर रहना बहुत अनिवार्य है, लेकिन बोट के अंदर अगर पानी होता है तो क्या होता है उसका नतीजा, तो बोट तो डूब ही जाता है उसके अंदर। ऐसे हमें संसार में रहना है, लेकिन हमारे मन में सांसारिक विचार नहीं होने चाहिए। अगर हमारे मन में सारे दिन सवेरे से लेकर रात तक अगर संसार के प्रति ही विचार चलते हैं, चिंतन चलते, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा करके सारा दिन हम लोगों के बारे में या सिचुएशंस के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, ऐसे हम सारा दिन इन्हीं के चिंतन में रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो क्या होगा, हम भी जैसे कि डूब जाते। फिर तो जैसे हमें लगता कि हम जैसे कि पाताल में गिर चुके, कुछ भी नहीं है सहारा, हम कैसे बाहर आए, इन सब चीजों से बाहर कैसे आए, फिर तो चिल्लाना शुरू करेंगे। इसीलिए बाबा कहते शुरू से ये आदत डालो, जो कुछ भी हो रहा है हमारे आजू बाजू जो कुछ भी है, तो ज्यादा नहीं चिंतन चलाओ, क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान भी तो बाबा ने दिया। तो ड्रामा में क्या कहा जाता है कि जो भी ड्रामा में होता है वो सब अच्छा ही है। और भगवान खुद इस समय ऊपर से परम धाम से नीचे आए हुए, अगर कुछ ठीक नहीं है इस ड्रामा में तो वो क्या करेंगे, वो तो खुद हाजिर है, वो डायरेक्टर है, तो वो खुद ही तो ठीक करेंगे ना। अगर जरूरत है तो वो करेंगे ही, हमें उनको बताने की भी जरूरत नहीं, वो आप ही करेंगे। अगर कुछ कर नहीं रहे हैं बाबा, ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो चल रहा है वो ड्रामा अनुसार ठीक ठीक ही चल रहा है, इसीलिए तो बाबा कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। तो ठीक है तो चेंज क्यों करना चाहिए। तो भगवान के नजर के सामने, उनके आंखों के सामने ही ये ड्रामा चल रहा है। जो मुझे दिख रहा है उनको भी तो दिखाई दे रहा है, तो ठीक ही तो है, तभी तो वो भी चुप है। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमें बाकी जो सिचुएशन के बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, बस मेरा लक्ष्य तो
इन सब से पार संपूर्ण होकर परमधाम जाना है। मेरा लक्ष्य यहाँ सेटराइट करना नहीं है, हर एक व्यक्ति को ठीक करना, हर एक सिचुएशन को ठीक करना। ये कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने हमें दिया ही नहीं है। हमें तो केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हमें अपने को ठीक रखना है। तो इसीलिए क्या सोचना है, जो चल रहा है सब कुछ ठीक ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, सब ठीक है, बहुत अच्छा, सब ठीक है। यही मंत्र सारा दिन जापते रहना, तभी क्या होगा, कोई भी सिचुएशन के बारे में हमारा चिंतन नहीं चलेगा। अगर ठीक नहीं है ऐसा लगता है ना, तभी हमारा चिंतन जाता है। तो अगर पहले से ही हम यही सोचे कि सब ठीक है, हमको केवल अपने मन के विचारों को, अपने स्वभाव संस्कारों को ही ठीक करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बाकी तो हमें इतना ही सोचना है, सब ठीक है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से सोचते हुए सबके साथ रहना है, उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। और कुछ लोग तो यही सोचते, पता नहीं मैं ऐसे कैसे फैमिली में आ गया हूँ, ये लोग ऐसे हैं, मेरा पता नहीं कोई जन्म का कर्म का बंधन है, मैं तो जैसे कि बंधन में फंस गया, ऐसे लोग सोचते। ऐसा भी नहीं सोचना है। जब तक हम इस ज्ञान में नहीं आए, वो हमारे कर्म बंधनों के कारण हम उन लोगों के साथ में रह रहे। लेकिन अब तो हमारा जन्म चेंज हुआ है, अब तो हमारा संगम युगी जन्म, अब हम कर्म बंधन के कारण उनके साथ नहीं रह रहे। अभी हम सेवा के हिसाब से हम उनके साथ रह रहे। बाबा ने हमें उस फैमिली में इसीलिए रखा है कि हम उन सबकी सेवा करें, बाबा की ज्ञान संदेश उन तक हम पहुंचाए और उन आत्माओं की बुद्धि योग बाबा के साथ हम जोड़े। इसी सेवा के लिए हमें उनके साथ रखा है। तो ये अगर बुद्धि में याद है तो कभी भी मोह नहीं आएगा। तो माताओं को मोह तो नहीं है, अगर थोड़ा धोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। क्या कहते हैं माताएं? क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। तो माताओं को ज्यादा मोह होता है पुत्र धोतरे पोतरों के प्रति। तो बाबा पूछते हैं कि मोह नहीं है, ऐसा तो माताएं कहते बिल्कुल मोह नहीं है। जब सेंटर में मुरली चलती है तब टीचर पूछते हैं तो यही कहते कि हमारा मोह नहीं है। लेकिन मोह है कब पता चलता? जैसे ही पोतरे दोतरों को कुछ हो जाता, कुछ बीमारी आ जाती, बुखार हो जाता, तो क्या होता, या उनको वो रोने लगते हैं तो इनका भी मन रोना लगता है, इनको भी दुख होता है। जब मोह है दूसरों का दुख भी हमारा ही दुख लगने लगता है। तो यही मोह का लक्षण है ना। इससे पता चलता है कि हमें मोह है या नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है ना? बाबा फिर से पूछ रहे हैं माताओं को। ऐसे नहीं कि उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना। तो कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोतरा, तो कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। तो बाबा पूछते हैं कि पेपर तो हम सबके सामने डेफिनेटली आएगा ना, किसी ना किसी रूप में तो आएगा। कभी बीमारी के रूप में आएगी, कभी कोई दूसरे रूप में आएगी, लेकिन ये तो सब होने वाला ही है। लेकिन हमें इन सब से कभी भी विचलित नहीं होना है। हमें तो उन सबसे न्यारे रहना है। हमें उनके साथ साथ बैठ के हमें खुद रोना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्टेबल रहते हुए उनको हमें मदद करना है, उनको उस दुख से मुक्त कराना है ना। तो तभी हम निर्मोही कहलाए जाएंगे। तो माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह।
पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। तो माताओं को क्या होता है, संबंधों से, व्यक्तियों से ज्यादा मोह होता है, परिवार के जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा मोह होता है। और पांडवों को, भाइयों को क्या होता, वो पैसे से ज्यादा मोह होता है। तो बाबा कहते हैं पैसा कमाने में इतना भी नहीं लग जाना कि हम पढ़ाई को ही भूल जाएं। हम पढ़ाई या याद या पुरुषार्थ सब भूल जाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हम इन सब चीजों से नष्ट मोह होंगे उतना ही ज्यादा हम स्मृति स्वरूप भी होंगे। ये जो मोह मुक्त स्थिति जो है, ये निर्मोही या हम कहे डिटैचमेंट या न्यारापन, ये जैसे कि एक जो काइट होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, पतंग, पतंग कहते हैं। तो पतंग उड़ाने के जैसे है। तो जैसे कि पतंग को अगर उड़ाना है तो उसका जो डोर रहता है, माना जो थ्रेड रहता है उसका, वो थ्रेड को खींचना पड़ता है, थोड़ा हल्का सा खींचना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि पूरा अपना ताकत लगा के खींचेंगे तो क्या होता, तो वो तो सीधा नीचे गिर जाता। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तब भी वो नीचे गिर जाता। आपको क्या लगता, पतंग का जो तार है, धागा जो है, वो अगर हम हाथ से छोड़ देते हैं तो पतंग अपने आप से उड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, वो भी नीचे गिर जाता। अगर पतंग को ऊपर उड़ाना है तो हाथ में वो धागा जो है उसको खींचना है, थोड़ा सा हल्का सा खींचना है, तो तभी वो उड़ता रहता है। ऐसे ही हमारे संबंध भी जैसे पतंग उड़ाने जैसा होता है। हमें जैसे ये जो तार जो है, वो जो धागा जितना सूक्ष्म रहता, माना बहुत हल्का पतला रहता है, उसको तो बस थोड़ा सा अपने हाथ में लेके थोड़ा सा खींचना है ना, वो ऊपर ऊपर उड़ता जाता है। ऐसे हम जब साथ में रहते हैं तब भी हमें बहुत प्यार से रूहानियत के साथ रहना है। अगर कभी कुछ ठीक नहीं लगता, जो हल्का सा प्यार से हमें उनको माना सावधानी देना है। ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा गुस्से के साथ उनको बताओ कि मैं ही तो आपको संभाल रही हूँ, मेरा पूरा अधिकार है आप पर, ऐसा करके हम पूरा अपना ताकत लगा के उनको कुछ बोले, वो तो जैसे कि नीचे ही गिर जाएंगे, अपना मूड ऑफ कर लेंगे। तो इसीलिए डिटैचमेंट इज लाइक फ्लाइंग अ काइट है। डिटैचमेंट कैसे हम लाएं? कभी कुछ लोग कहते हैं साथ में रहते रहते सारा दिन उनका ही तो चिंतन चलता है, तो हम तो अटैच्ड हो ही जाएंगे, ना मालूम या माना ना चाहते हुए भी हम अटैच हो ही जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं होंगे? ऐसे भी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आप ये एग्जाम्पल्स देखना, जैसे कि आईसीयू में जो नर्स होती है, वो पेशेंट को इतना ध्यान से अटेंड करती है, इतनी सेवा करती है, माना हर एक पेशेंट को जो भी चाहिए, उनका जो माइनर मूवमेंट्स भी होता, क्योंकि आईसीयू के पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉपरली बात करना भी मुश्किल होता, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी मूवमेंट से भी नर्स को समझना पड़ता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, क्या तकलीफ हो रही है और उनको कैसे ठीक किया जाए। तो इतना अटेंशन देती है। डॉक्टर तो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सब लिख के चले जाते हैं, पूरा दिन तो नर्स ही तो संभालती है, सवेरे से लेके शाम तक, रात तक नर्स संभालती है, पूरा ध्यान देती है। लेकिन जैसे ही नर्स की ड्यूटी आवर्स पूरा हो जाता है तो वो तो अपने घर चली जाएंगी। घर में जाके आपको लगता है कि वही पेशेंट के बारे में सोचती रहेंगी? जब दूसरे दिन वो आएगी, क्या पता वही पेशेंट रहेगा या डिस्चार्ज होके गया होगा, या तो शरीर भी छोड़ दिया होगा ओवरनाइट में, या दूसरा ही नया पेशेंट आया होगा। क्या वो सोचने बैठ जाती है कि अरे मैंने कल पूरा दिन उनकी सेवा की, वो अभी कहाँ चला गया? ऐसा थोड़ी ना सोचेंगे।
या रोने लग पड़ेंगे वो अगर शरीर टूटने से, बिल्कुल भी नहीं। वो केवल निमित्त मात्र अपना ड्यूटी करती रहती है, वो हाथ पैर से अपना काम करती है, लेकिन मन में वो पेशेंट के बारे में सोचती नहीं रहती। घर में जाने के बाद भी वो पेशेंट के बारे में नहीं सोचती, वो अपना ही जो कार्य है उनका वो ही सोचती रहती है। इसीलिए उनका पेशेंट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहता, जबकि वो पूरा दिन रहने के बाद भी उनको कोई अटैचमेंट नहीं रहता। तो ऐसे ही हमें भी घर गृहस्थ में रहते हुए आईसीयू नर्स की तरह रहना है, संभालना है अपने फैमिली मेंबर्स को, उनके लिए जो चाहिए जो बना के देना है, जो तैयारी करके देना है, उनके लिए जो भी कुछ हमें सेवा करना है, सब कुछ करना है, साथ में रहते हुए करना है, लेकिन करते हुए उनके बारे में नहीं सोचना है। करते हुए हाथ पैर से काम करते हुए मन ही मन में बाबा के बारे में सोचना है, बाबा को याद करना है, बाबा की जो मुरली के पॉइंट्स है उन्हीं मुरली पॉइंट्स के ऊपर चिंतन चलाना है। तभी हम उन कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, उस व्यक्ति के बंधन से भी मुक्त होंगे, नहीं तो हम और ही बंधन में फंसते जाएंगे। ऐसे ही दूसरा है कार का ड्राइवर। तो जैसे बड़े लोग जो रहते, वीआईपी लोग रहते हैं, तो वो खुद कार नहीं चलाते, कार उनका है लेकिन वो ड्राइवर को रखते हैं। तो सारा दिन कार को चलाना, कार को ठीक रखना, कार को साफ सुथरा रखना या उनका सर्विसिंग कराना, सब कुछ वो ड्राइवर करता है। जितना टाइम ड्राइवर कार के साथ रहता है या कार के अंदर रहता है, उतना टाइम मालिक थोड़ी ना रहता है। मालिक को जब काम होता है तभी बैठता है, जाता है, आता है, फिर अपना घर या ऑफिस का काम में बिजी रहता है। पूरा दिन ड्राइवर कार के साथ रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है ड्राइवर को कार के साथ अटैचमेंट होगा? नहीं। उनको हमेशा याद है कि ये कार मेरा नहीं है, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी और का है, ये मालिक का है, मुझे तो केवल चलाने के लिए पैसा मिलता है, मुझे सैलरी मिलता है बस। सैलरी से उनका सैलरी से उनका मतलब है ना कि वो कार से, या समझो कि कार को साफ सुथरा रखना, संभालना वो सब करेगा, लेकिन अपनापन नहीं रहेगा, वो अटैचमेंट नहीं रहेगा, है। तो ऐसे हमें भी वस्तुओं के साथ यूज तो जरूर करना है, लेकिन अटैच नहीं होना है। ऐसे जैसे कि बैंक में अगर आप कैशियर को देखेंगे तो वो जैसे ही ड्यूटी आवर्स में रहते, सवेरे 10 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक, वो पूरा दिन कैश ही हैंडल करते रहते हैं। उनके हाथ में पूरा दिन नोट ही नोट रहता है, वो भी कोई 1000-2000 के नहीं है, कोई लाखों में पैसा उनके पास पड़ा रहता है, काउंट करना रहता है, उसको सारा काउंटिंग करके उसका हिसाब रखना रहता है उनको। सारा दिन कैश हैंडल करते हुए भी, सारा दिन कैश हैंडल करते हुए भी वो उस कैश को कभी मेरा अपना करके नहीं सोचेंगे, ये मेरा पैसा है, सारा दिन मैंने इसको काउंट किया, सारा दिन मैंने इसका हिसाब रखा, सारा दिन मैंने इसको संभाला, तो ये मेरा है, मेरा अधिकार है इस पर, ऐसा वो कभी सोच सकते? पूरा दिन काम करते, लेकिन जब जैसे ही उनका ऑफिस आवर्स पूरा होता वो निकलते हैं, तो वो थोड़ी ना वो सब कैश अपने साथ लेके जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसीलिए ऐसे जैसे ये सब लोग माना कैश के साथ, कार के साथ या पेशेंट के साथ रहते हैं पूरा दिन, फिर भी उन लोगों के साथ अटैच्ड नहीं होते। तो ऐसे हमें भी घर गृहस्थ में, ऑफिस में या बिजनेस में रहते हुए भी हमें किसी के साथ अटैच्ड नहीं होना है। वो भले हमारे बाजू में बैठे हुए सारा दिन, जैसे कि हमारे एकदम बाजू में बैठे हैं, हम साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो बाजू में बैठते हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ उनकी स्मृति नहीं होनी चाहिए, यहाँ उनके प्रति चिंतन नहीं चलना चाहिए, है ना। लोग तो केवल हमारी बातों को समझते हैं,
हमारे एक्शंस एक्सप्रेशंस को समझते हैं, हमारे अंदर क्या विचार चलता, हमारे अंदर क्या स्मृति है, वो थोड़ी ना लोगों को पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कंप्लेंट करता है, अरे आप तो हमें याद ही नहीं करते, उनका कहने का मतलब क्या होता कि सारा दिन बैठ के हम उनको याद करें, ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम याद नहीं करते मतलब हम उनके साथ बातें नहीं कर रहे, उनको कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं, या उनको कॉल नहीं करते, या उनका दिया हुआ कोई काम हम नहीं कर रहे हैं, यही मतलब होता है। तो वो ऐसा नहीं सोचते कि हम बैठे सारा दिन उनको याद करते रहे और उनको कोई फोन ना करे, मैसेज ना भेजे, उनका कोई काम ना करे, फिर भी हम सारा दिन बैठ के याद भी करें तो भी उस व्यक्ति को थोड़ी ना पता चलने वाला है। नहीं, वो तो केवल हमारे बातों को, एक्शंस को, एक्सप्रेशंस को ही समझेंगे। वो भले हम उनके साथ कितना भी बातें करें, बाबा को कोई एतराज नहीं है। बाबा कभी नहीं कहते आप किसी से बात नहीं करो, बात जरूर करो, लेकिन याद शिव बाबा को करो। अभी भी जब आप ये सेशन सुन ही रहे हैं, आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, साथ में आपको माना मेरी बातें भी, आवाज भी सुनाई दे रहा है। ये सब कुछ होते हुए भी माना दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, फिर भी आप कुछ और भी तो याद करते होंगे, बीच में कुछ और बातें याद आई, घर की, ऑफिस की, कुछ और बातें बीच बीच में आती है जाती है। माना आप ये सब काम करते हुए भी बीच में याद तो कोई चीज आती है ना आपको, तो माना आदत तो है हमें ऐसे। तो ऐसे ही हमें व्यक्तियों के साथ बैठ के काम करते टाइम भी हमें करना क्या है, उनके साथ बातें करना है, उनके साथ बैठ के काम करना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। तो हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स भी कॉलेज में बैठे रहते, लेक्चरर उधर उनका माना लेसन सिखाते रहते हैं, लेकिन ये बैठ के कोई क्रिकेट का, मूवी के बारे में सोचते रहते, ये तो पॉसिबल है। तो ऐसे ही हमें भी याद शिव बाबा को करना है। वो कोई हमारे बाजू में बैठने वाला व्यक्ति कभी ये कंप्लेन नहीं करेगा कि आप बात तो मेरे साथ कर रहे हो लेकिन याद किसी और को कर रहे हो। ऐसा कंप्लेन कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उनको हम याद किसको कर रहे हैं, हमारे मन बुद्धि में क्या चल रहा है, उनको थोड़ी ना पता चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा इतना ही तो चाहते हैं कि मुझे याद करो और बातें सबके साथ करो, क्या प्रॉब्लम है? तो बैलेंस तो हो गया ना। हम यहाँ बाबा को भी खुश रख सकते हैं और इन व्यक्तियों को भी हम खुश रख सकते हैं, दोनों को खुश रख सकते हैं, दोनों हमसे खुश हो जाए। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? सिंपल है, लेकिन हमने कभी अटेंशन नहीं किया। हमने क्या किया, याद इनको किया, बाजू में जो बैठे हैं या परिवार के लोग हैं, याद उनको किया और बातें शिव बाबा से किया। क्या बातें किया? बाबा के कमरे में बैठ के, बाबा के फोटो के सामने बैठ के बातें किया। बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता, बाबा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे बातें बाबा से किया और याद लोगों को किया। और जो बातें मैं बोल रही हूँ जोर जोर से, वो बाबा को थोड़ी ना सुनाई देता, वो नहीं सुनाई देता, उनको तो कान है ही नहीं। और जो बाजू में बैठते हैं उनको मैं याद कर रही हूँ लेकिन उनको भी पता नहीं चल रहा, तो ये भी नाराज और बाबा भी। ऐसे बाबा नाराज नहीं होते लेकिन बाबा संतुष्ट भी तो नहीं होते। तो हम उल्टा काम करते रहते सारा दिन, यही प्रॉब्लम है। बस उसको सीधा करना है, बातें लोगों के साथ करें और याद शिव बाबा को कर। देखो फिर सिंपल टिप है, सिंपल युक्ति है, ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, लेकिन इतना ही करें तो भी हम मोह मुक्त हो जाते। मोह तभी होता जितना हम मन से कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई सिचुएशन को याद करते जैसे कि उनके साथ हमारा एक, जैसे कि रस्सी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एक बार सोचा तो एक रस्सी से कनेक्ट किया, दूसरी बार सोचा तो दूसरा भी रस्सी कनेक्ट हो गया, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा हम 100 बार, 1000 बार सोचेंगे तो आप सोचिए 100,000 बार रस्सी हमसे और उनके साथ
जुड़ जाता है और इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाता, इतना स्ट्रांगली जुड़ जाता, फिर अगर आप छोड़ के कहीं जाना चाहते हो तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हमने जोड़ के बहुत कुछ रखा है ऐसे। फिर कैसे ऊपर उड़ेंगे हम? उड़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमें हमें ऐसे अपने आप को बार बार चेक करना है। स्नेह और मोह में तो बहुत डिफरेंस है, ये हमें समझना चाहिए। स्नेह क्या करता? हमें स्वतंत्र करता है। अगर किसी के साथ बहुत स्नेह है तो क्या होता, हम माना जैसे कि वो हमें आजाद छोड़ेंगे, वो हमें समझेंगे कि हाँ मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, और मैं भी अलग व्यक्ति हूँ, वो भी अलग व्यक्ति है, और इसीलिए तो वो स्नेह के कारण ये सब समझ पाते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअलिटी अलग अलग रहता, हर एक व्यक्ति यूनिक रहता, उनके चॉइसेस हो, उनके माना इंटरेस्ट हो, हर एक चीज अलग रहता, तो ये बात उनको समझ में आता, तो इसीलिए इजीली एक्सेप्ट करते। लेकिन जब मोह होता तो हम बंधन डालते रहेंगे, या कोई और व्यक्ति का मोह हमारे प्रति है तब भी हमें जैसे कि बंधन ही लगता है। और स्नेह में क्या होता, हम निस्वार्थ रहते, हमें कोई स्वार्थ नहीं है उस व्यक्ति से। लेकिन मोह जब होता है तो स्वार्थ रहता है, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा होती है कि ये ऐसे ही करे, ये ऐसे बिहेव करे, माना हमेशा जैसे कि एक्सपेक्टेशंस टू मच रहता है, और जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन अनुसार वो लोग नहीं करते हैं तो क्या होता, हम फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और स्नेह में क्या होता, हमें सुख मिलता है, मोह के कारण तो हमें दुख ही मिलता है। सुख मिलता है लेकिन अल्पकाल के लिए मिलता है, और स्नेह में हम बेहद का फीलिंग करते, हमें लगता है स्नेह सबके साथ हम रख सकते, लेकिन मोह में क्या होता, हद का हो जाता, माना इनके साथ रखा तो किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, किसी और के साथ बात नहीं करना चाहिए, किसी और के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए, बस इन्हीं के साथ। तो ऐसा जैसे कि हद आ जाता, लेकिन स्नेह में ऐसा नहीं होता, बेहद की भावना रहती, हमें लगता कि अच्छा है, हम भी उनको प्यार करते, वो भी हमें प्यार करते, कोई और भी उनको प्यार करे तो हमें कोई ऐतराज नहीं, वो भी किसी को प्यार करे, स्नेह रूहानियत से किसी के साथ रहे तो हमारा कोई ऐतराज नहीं रहेगा, क्योंकि बेहद की भावनाएं हैं और हम सब एक हैं। ऐसी भावना के कारण कभी हमारे बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ सकता। और स्नेह में हम तो धीरज हमारे अंदर रहता है, लेकिन मोह में भय रहता है। स्नेह के कारण हमें लगता कि हाँ मेरे फ्रेंड साथ में है ना, तो मैं हर एक काम कर सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे जैसे अंदर और ही ज्यादा बल आता है। लेकिन मोह में जब हम रहते हैं तो हमें लगता है पता नहीं ये कभी छूट ना जाए, कभी छोड़ के चले ना जाए, कहीं मैं इनको खो ना दूं, ऐसा करके डर ही रहता है। तो ऐसे स्नेह और मोह तो बहुत अंतर है, लेकिन शब्दों में तो एक अक्षर का ही अंतर है, लेकिन इन रियलिटी अगर आप देखो रात दिन का अंतर है। लेकिन स्नेह और मोह इनिशियली दिखने में एक जैसा ही रहता है, हाँ? थोड़ा नजदीक जाने के बाद ही पता चलता कि ये स्नेह अलग है, मोह अलग है। तो हमें स्नेह में रहना है, ना कि मोह में रहना है। तो बाबा कहते नष्टो मोह बनने का तरीका है अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। जिम्मेवारी समझते तो मोह हो जाता, और जिम्मेवारी छोड़ना अर्थात नष्टो मोह। खुद स्वयं को बच्चा समझो, बड़ा नहीं। बच्चा समझना अर्थात नष्टो मोह होना। बड़ा समझते तो बाप भूल जाता, बच्चा समझने से बाप की याद स्वतः आएगी। तो माना हम सोचते हैं कि हम ही हैं, माना हमारा ही जिम्मेवारी है, हमारा ही जिम्मेवारी है। तो ऐसा सोचने से क्या होता, तो हमें लगता कि ये सब मेरे ऊपर ही है, मेरे सिर पर ही है सब कुछ। तो तभी हमें ट्रबल होता है।
लेकिन अगर हम समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें बहुत इजी होता है, क्योंकि बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, वो इजी फील करता है। बड़े सब कुछ देख लेते हैं, बच्चों को तो केवल बस जो काम उनको दिया हुआ रहता है बस उतना ही करना, कल क्या होगा कैसे होगा वो कभी सोचेंगे नहीं, ऐसा सब। तो इसीलिए बच्चा समझना ही, अपने को बच्चा समझ के रहना। भगवान का हम संतान है, प्रिय संतान है, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा मेरे ऊपर बैठा है और वो सब कुछ देख लेंगे, ऐसा समझने से क्या होता, बाबा कहते हैं आप सब जिम्मेवारी जैसे कि बाबा को दे दिया और आप नष्टो मोहा हो गए। लेकिन अपने को बड़ा समझते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम भी बड़ा ही होता है, और बाबा को भी हम भूल जाते हैं। इसलिए बच्चा बन के रहना बहुत अच्छा है। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, व मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ, उसके बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। तो बाबा कहते हैं कभी ये नहीं सोचो मैं गृहस्थी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। कभी अपने बारे में जो लौकिक के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार नहीं सोचना, या अपना लौकिक के क्वालिफिकेशंस हो, लौकिक के पोस्ट पोजीशन के अनुसार कभी नहीं सोचना। वो तो केवल लौकिक काम करने के लिए वो सारी चीजें हैं, लेकिन मन में सोचने के लिए तो बाबा की बातों के अनुसार, बाबा ने जो ज्ञान दिया उसी के अनुसार ही हमारा सोचना या हमारा सोच होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपना ये 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में लाओ। नष्टो मोह होने के लिए बाबा ये 5 स्वरूप बता रहे हैं। तो ये 5 स्वरूप हमें याद रखना है। एक है मैं बच्चा, मैं आत्मा, बाबा का बहुत प्रिय लाडला सिखिलदा बच्चा। तो ऐसे अपने को समझो तो भी आप मोह से इजीली मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ऐसा समझना। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए। जैसे स्टूडेंट का लक्ष्य हमेशा क्या होता, उनका ध्यान हमेशा पढ़ाई पर होता। आगे में घर का ईएमआई कैसे भरे, या आगे में प्रॉपर्टी कैसे खरीदे, आगे में ये सारा काम कैसे करे, कंस्ट्रक्शन कैसे करो, ये सारा कोई थोड़ी ना बच्चे सोचते हैं, वो नहीं सोचते, उनका तो ध्यान पढ़ाई पर रहता। तो हम भी बाकी सब नहीं सोचे कि कैसे होगा विनाश, कैसे सत्युग स्थापना होगी, इन सब का परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, ये कब सुधरेंगे, ये सारा काम कैसे होगा, ये सारा सोचने का हमारा जिम्मेवारी नहीं है। हमारा जिम्मेवारी यही है कि बाबा ने जो मुझे रोज जो पढ़ाते हैं बस वही पढ़ना है, वही उसी के ऊपर चिंतन चलाना है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ, ये स्वरूप स्मृति में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है हम रूहानी यात्री हैं। तो रूहानी यात्री जो होंगे, माना हम यहाँ से हम परम धाम का सैर करते हैं और सत्युग का भी, तीनों लोकों का सैर करते हैं। तो हम रूहानी यात्री बन के रहना चाहिए, क्योंकि यात्री जो होता है उनको भी किसी चीज से मोह ममत्व नहीं रहता। वो सारा दिन ट्रैवल ही करते रहते हैं। जितना टाइम वो कहीं पर है उतना टाइम वो देखेंगे, एंजॉय करेंगे, यूज करेंगे, उसका सुख लेंगे, मना संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, और बस उसके बाद हो गया तो वो चल पड़ेंगे, उनका काम हो गया तो आगे चल पड़ेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप लोगों को भी अगर कोई शहर में जाते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैसूर में जाते, तो मैसूर जाते हैं तो मैसूर में देखने की टूरिस्ट अट्रैक्शंस, साइट सीइंग प्लेसेस बहुत है। और जैसे आपके पास लिस्ट होगा तो वो सब एक के बाद आपने सब देख लिया, उसके बाद फिर आपको क्या लगेगा, हो गया ना, जो देखना था वो सब हो गया, लिस्ट में जितना भी था वो सब हो गया, चलो अभी चलते। ऐसा होता है ना मैम। ऐसे थोड़ी ना कि आपको लगता है कि मैं उधर ही जाके बैठ जाऊं हमेशा के लिए, नहीं। आपका घर गृहस्थी है या आपका अपना कारोबार है, वो भी तो आपको संभालना है, तो आपको आना है। वहां तो आप केवल देखने के लिए गए थे,
यात्री बन के एज ए ट्रैवलर टूरिस्ट बन के गए थे, तो बस देखने का ही काम था, देखने का सुख लेना था, हो गया, आगे निकल पड़े। ऐसे ही हमें भी इस दुनिया में हम यात्री के रूप में, टूरिस्ट के रूप में आए हैं, गेस्ट के रूप में आए हैं। हमें यहाँ अभी फिलहाल संगम युग में हमारा अभी काम है विश्व परिवर्तन करना या स्व परिवर्तन करना। तो यही काम हमें करना है, बस उसके बाद हमें निकल जाना। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। तो ये सोचने से भी मोह मुक्त होना बहुत आसान है। और नेक्स्ट है रूहानी योद्धा। तो ये स्मृति भी बहुत आवश्यक है। ये स्मृति रखने से भी हम अलर्ट रहेंगे। जैसे एक योद्धा जो है वो कैसे रहते युद्ध रंग में, माना युद्ध क्षेत्र में, वो बहुत अलर्ट, अटेंटिव, प्रिपेयर्डनेस के साथ रहते हैं, है ना। कहीं वो जैसे कि उनको उनकी दृष्टि चारों तरफ रहता। वैसे तो आंखें तो सामने ही है, सामने की जो चीजें है वही दिखती है, लेकिन एक योद्धा को ऐसा होता है कि उनका पूरा बॉडी ही जैसे कि आंखों जैसा होता है, माना उनको जैसे हर एक साइड में उनका अटेंशन रहता, कहाँ से कहाँ आवाज आ रहा है, या माना कहाँ से क्या स्मेल आ रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, हर एक चीज पर उनकी निगरानी रहते, माना नजर रहता, माना इतना अटेंटिव रहते, इसीलिए कि कहीं से भी कोई भी कोने से शत्रु एनिमी हम पर अटैक ना कर जाए, इसीलिए अपने को संभालने की पूरी वो अटेंटिवनेस रहता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी यही अटेंटिवनेस, अलर्टनेस अगर रहेगा तो माया कहीं से भी हमारे अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती है। तो हम तो माया को भगाने के लिए, माया के ऊपर विजयी बनने के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा भी तो युद्ध माया के साथ चल रहा है। तो ये स्मृति रहने से हम मोह मुक्त होना बहुत हमें आसान हो जाता है। और हम है खुदाई खिदमतगार, हम भगवान के हेल्पर्स, असिस्टेंट्स हैं, हम उनको मदद करने वाले हैं। आप सोचिए, अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर फोन करके कहे कि आप मुझे मदद करोगे, आपको फोन कॉल आया और मोदी जी का आवाज सुनाई दिया और वो कह रहे हमको मदद करोगे, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? खुशी खुशी से बोलेंगे ना कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। आपको लगेगा अरे प्राइम मिनिस्टर हमको फोन करना कोई कम बात है क्या, वो हमको याद किया और हमसे मदद मांग रहा है। तो बहुत खुशी से, प्राउडली यू वुड से यस। अभी आप सोचिए, भगवान आपसे मदद मांग रहा है, मदद पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम उनके मदद के योग्य बने हैं, काबिल बने हैं। एक्चुअली काबिल भी वही बनाता और फिर हमसे वो काम करवाता और भाग्य सारा हमारे अकाउंट में डाल देता। ऐसा है भगवान। हाँ, उनके विश्व परिवर्तन के कार्य में उनके साथ हाथ बटाना, ये हमारा कितना सौभाग्य है। ऐसा अगर मन में भी लाते हैं स्मृति, तो भी ये छोटी छोटी बातें, जो दर गृहस्थ की बातें, ये सब छोटी छोटी बातें लगेंगी। छोड़ो ना, ये सब क्या है, क्यों सोचना है, छोड़ दो सब। हमारे सामने तो बड़ा है कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य दिया हुआ है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं दिया है। मुझे बहुत बड़ा पोस्ट दिया है भगवान ने, बड़ा कार्य सौंपा है, जिम्मेवारी भी बेहद कर दिया है। तो हमें तो माना फकुर में होना चाहिए, हमें नशा होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हम कोई साधारण नहीं है, हम कितने श्रेष्ठ हैं, महान हैं। कि भगवान भी हमारे प्रति कितना ऊंच सोच रखता है, कितनी ऊंची दृष्टि से हमें देखता है। तो ये याद रहने से भी हमें इन मोह, ममत्व, अट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे हम। आप बताइए, भगवान से सुंदर कौन है जो आपका अट्रैक्शन किसी और पर जाता? आप बताइए कौन है? उनसे सुंदर कोई है? उनसे स्वीट कोई है?
उनसे अच्छा आपको समझने वाला कोई है? उनको, वो जितना आपको समझता है, वो जितना आपको मदद करता है, वो जितना आपको भाग्य देता है, उतना करने वाला इस दुनिया में कोई और है? तो ऐसे कैसे हम भगवान को छोड़ के कोई देहधारी व्यक्ति के प्रति हमारा अट्रैक्शन जा सकता है, आसक्ति जा सकती है? नहीं है ना। अब बैठ के ऐसे चिंतन चलाओ, ऐसा क्या चीज है जो भगवान मुझे नहीं देता और लोग मुझे देते हैं, इस कारण मैं उनके पीछे पीछे लट्टू हो जाती हूँ, उनके पीछे पीछे भागना शुरू करती हूँ। ऐसा क्या सुख भगवान ने नहीं दिया जो मुझे कोई वस्तु से, कोई खाने से, कोई चीज देखने से मिल रही है? ऐसा क्या है जो भगवान ने आज तक नहीं दिया? अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ तो इसका मतलब मैंने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, और वो जो दे रहा है मैंने लिया नहीं। थोड़ा सा लेने का पुरुषार्थ अगर हम करें, आप देखो हमारा मन कहीं जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। एक बारी आपको टेस्ट लग जाए भगवान के साथ का अनुभव इतना सुखदायक है, उसका टेस्ट अगर एक बार हो जाए तो मन कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो इधर ही आएगा। जैसे कि मैंने सुना है, अभी पहले मैं जब बैंगलोर में पढ़ती थी तब हमारे कॉलेज के पास एक MTR होटल था, अभी भी है, लेकिन पहले जो लोग संभालते थे वो लोग नहीं संभालते, अभी किसी और को प्रोप्राइटरशिप माना ट्रांसफर दे दिया। लेकिन उस टाइम हमने देखा लोग कहाँ से आते थे उस होटल में खाना खाने के लिए, इतना लंबा क्यों रहता था। ऐसी वही चीजें दूसरे बहुत जगह पे मिलता है, हाँ, बहुत जगह से मिलता है, लेकिन वहां पर जो मिलता वो टेस्टी इतना है कि लोग हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके भी वहां आके खाना खाते थे। तो आप सोचिए, टेस्ट एक बार लग जाता तो छोड़ते नहीं है लोग। तो ऐसे ही भगवान के साथ का सुख का भी टेस्ट लग जाए तो आपका मन कहीं पर भी नहीं जाएगा। अच्छा, हम एक बार रिवाइज कर लें, बस मैं एक 2-3 मिनट में कंप्लीट कर देती हूँ। तो मोह मुक्त होने के लिए 5 स्वरूप की स्मृति में रहो। एक तो मैं बच्चा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, रूहानी यात्री हूँ, रूहानी योद्धा हूँ और खुदाई खिदमतगार। तो इस प्रकार से हमें सोचना है और हमें इस दुनिया से, पुरानी दुनिया को भूल कर, पीछे छोड़ के ऊपर उठ के हमें शिव बाबा के पास जाना है। तो पीछे छोड़ दो, हम फरिश्ता बन जाएंगे और एकदम बाबा के साथ का अनुभव हम करने लगेंगे। तो बस सारा दिन मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, बाकी कुछ भी मेरा समझते हो तो मोह जाता है। अगर एक बाबा को ही मेरा मानते हो, समझते हो, तो मोह नष्ट हो जाता है। कितना इजी है ना। इजी है या मुश्किल है, क्या लगता? మీకందరికీ ఏమనిపిస్తుంది? ఈజీగా ఉందా అథవా కష్టం అనిపిస్తుందా? ఈజీ కదా। तो बस हमें इतना ही करना है, मेरा बाबा मन ही मन में गुनगुनाते रहना है। बस एक बाबा के साथ ही हमारा दिल लगाना है। तो देखिए निर्मोही बनना कितना आसान। अच्छा, ओम शांति। हमें अच्छा मौका दिया लक्ष्मी अक्का ने, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सबने भी बहुत शांति पूर्वक पूरा लंबा सेशन था ये, आपने पूरा ध्यान से सुना। ये कुछ बाबा की बातें कितना अच्छा लगता है आपस में शेयर करने के लिए। तो आपने ये पूरा सेशन में भाग लिया, तो आपको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू टू बाबा एंड थैंक्स टू एवरीवन। और मैं यही मौका लेती हूँ, आप सब जरूर मणिपाल पधारिए
लक्ष्मी अक्का आप जरूर सबको लेके आना, पूरा श्योर परिवार को। श्योर यहाँ ज्ञान, बाबा ज्ञान का सागर है और हमारे यहाँ भी सागर है, अरेबियन सागर है यहाँ। तो सागर के सामने बैठ के ज्ञान सागर को बहुत प्यार से याद कर सकते। तो थैंक यू Sure. సో మచ్। ష్యూర్ అక్క, ష్యూర్ ష్యూర్. థ్యాంక్ యూ. మనమందరం చాలా 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 అక్కకి కృతజ్ఞతలు. చాలా హైయెస్ట్ సబ్జెక్ట్ నష్టమోహ స్మృతి స్వరూప. మొత్తం బాబా యొక్క మురళి యొక్క సారమే అది. అయితే అక్కడికి చేరుకోవాలంటే రోజు రోజు బాబా చెప్పిన విషయాల్ని ఒక్క ప్లేస్ లో వాటిని గ్యాదర్ చేసి మనకి మొత్తం ఫుడ్ ని, అంటే ఒకరోజు పలావ్, ఒకరోజు మజ్జిగన్నం, ఒకరోజు ఓలిగా అట్లా తినకుండా అన్ని కలిపి ఒకరోజు బ్రహ్మభోజనం చేస్తే ఎంత కడుపు నిండుతుందో ఆ విధంగా అక్క వాళ్ళు చాలా విషయాల్ని నిజంగా మీరు డైజెస్ట్ అయింటుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ దీన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రికార్డింగ్ అయ్యింది, దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ మళ్ళీ విని దాంట్లో కనీసం ఎసెన్స్ ఏదైతే ట్రస్టీ జనక మహారాజు ఉన్నారో ఆ విధంగా మన జీవితాన్ని కూడా అందరూ నా వాళ్ళే, ఎవరు నా వాళ్ళు కాదు, అన్ని నాది, ఏది నాది కాదు అనేటువంటి స్మృతితో ఖాళీగా వచ్చినాం, ఖాళీగా వెళ్తాం. సో అక్క వాళ్ళు చాలా సూపర్ విషయాల్ని చూడండి. చిన్న పిల్లలు యాపిల్ అంటే తెలుసుకోలేరు, ఏ అంటే గుర్తు పెట్టుకోలేరు, అందుకేం చేస్తారు, ఏ ఫార్ యాపిల్ అంటే యాపిల్ బొమ్మని చూపిస్తారు. అప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా ఎక్కడ చూసినా యాపిల్ బొమ్మని వాళ్ళు మర్చిపోరు. దాని స్పెల్లింగ్ కూడా చెప్పేస్తారు మార్కెట్ లో చూసినా. అట్లాగా మీరు ఈ బొమ్మల్ని మనసులో పెట్టుకొని ఏది చెప్పినారు, ఎందుకు చెప్పినారు, దీని ఎసెన్స్ ఏమి, బాబా మనకి ఎంత మంచిగా అరటిపండు ఒలిచి నోట్లో పెడుతున్నారు, ఇంకా నమ్మలాలి అంతే, అది మన పనే కదా. చూడండి, వాస్తవంగా ఒక నదిని ఒడ్డు వరకు తీసుకుపోవచ్చు, ఒక గుర్రాన్ని నోట్లో నీళ్లు కూడా వేయచ్చు, మింగేది ఎవరి పని, గుర్రం పనే కదా. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అక్క వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తూ, అందరికీ మనసు ఉంది, అందరూ మీరు చాట్ బాక్స్ లో అక్క వాళ్ళకి ఓం శాంతి చెప్పండి. కేవల్ విఠలన్న పద్మక్క మాత్రం అక్కకు థ్యాంక్స్ చెప్తారు. అక్క మీరింత సమయం ఇచ్చి మాకి దీనికోసం ఉదయం క్లాస్ ని, ఈరోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినం కాబట్టి మర్చిపోయినాము, అందుకోసం అక్క వాళ్ళకి జ్ఞాపకం చేయించినారు. సో అందుకు దాన్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ ముందు చేసుకున్నాం. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈరోజు బస్వన్ గుడి వైపు నుంచి కూడా యోగ బట్టి క్లాసెస్ మీరు యూట్యూబ్ లో వింటూ ఉంటారు. తప్పకుండా దాన్ని మిస్ చేయకుండా మళ్ళా రేపైనా యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది. డోంట్ మిస్ దట్ క్లాస్. దాదీజీ యొక్క క్లాస్ ఉంటుంది, అందరూ మీరు వినాలి. సో అక్క వాళ్ళకి చాలా 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 ఇన్ఫినిటివ్ హార్ట్ ఫెల్ట్ హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు. విఠల్ భాయ్, थैंक यू सो मच अक्का, थैंक यू। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हिंदी में या इंग्लिश में बोलो, या ओम तेलुगु शांति। में भी बोलो, तेलुगु समझ लेते हैं। तेलुगु भी, आज तेलुगु का अर्थमैతుంది। क्लास ओम शांति बहन जी, बाबा ने ओम आपसे बहुत अच्छी रीति से, सरल रीति से बहुत एग्जाम्पल दिया और सहज रीति से एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल में बहुत अटैचमेंट हुआ। एक बरस में अटैचमेंट के बारे में एक चित्र दिखाया आपने, बाबा ने आपके माध्यम से दिखाया। क्यों एक अटैचमेंट इतना मोह होता, बरस में दोनों है, एक गिरेंगे तो दूसरे भी गिरेगा। तो इतना सरल रीति से बाबा ने एक चित्रों के दिखाकर हमको बहुत सरल रीति से ज्ञान सागर की बहुत कितना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान को, विस्तार ज्ञान को सार रूप में हर एक बात बताया। और मुख्य है न स्नेह में मुंह में फर्क है, वो भी बहुत सरल रीति से विस्तार में फर्क बताया बहन जी। आप बाबा ने आपको इतना अच्छा मौका दिया। आज साथ में अंत में 5 बातें याद रखने के लिए, आपको स्मृति में रखने के लिए दिखाया बहन जी।
और एक है मैं बाबा का बच्चा हूँ, नन्ही बच्चा नूरे बच्चा हूँ और गॉडली स्टूडेंट हूँ, रूहानी यात्री हूँ, रूहानी योद्धा हूँ और अंत में बाबा का सहयोग, खिदमतगार। इतनी अच्छी बातें बाबा सुनवाया, बहुत धन्यवाद। मैं बीच में ज्वाइन हुआ, फिर మొబైల్ అల్లాడిచ్చేద్దండి, మొబైల్ ఒకే జాగాలో పెట్టండి. सॉरी बहन, बीच में आया मैं दो नुकसान हुआ, फिर एक बार दूसरा बार सुनेंगे। इसी समय में साइंस भी हमको बहुत मदद मिल रहे है। और एक बार बहन जी को एक विनंती है, अपील भी है, और एक क्लास करवाना है। बाबा आपको मौका दे, उनके पास ढेर सारी खजाना है, ढेर सारी खजाना है। उसमें से मैंने एक नष्ट मोह का एक चुन लिया, नहीं तो उनके पास सागर जितना है, सागर जितना है। वो सारा ज्ञान शिव बाबा देता है, देता है। जी जी जी, बाबा का गंगा है। हम हमारी बहन जी माँ के ज्ञान गंगा है ना, बाबा के बच्चे तो सेवादारी। तो नष्ट मोह ही बहुत अच्छी सब्जेक्ट है बहन जी। हमको गृहस्थी में रहते हैं ना, कैसे संभालन करने, कैसे घर को संभालन करना, ऑफिस अटैचमेंट समझ गए। बहुत बहुत इजी से सरल रूप से आपसे हम सबको समाचार मिला, ज्ञान मिला। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। मैं अभी बाकी रहा और क्लास के बाद धन्यवाद और भी फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। सारा क्रेडिट शिव बाबा को जाता है, क्योंकि ज्ञान उनका है और हम बच्चे भी उनके हैं, तो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ, उनकी कृपा से होता है। प्रभु प्रसाद। పద్మక్క నువ్వు చెప్తావమ్మా? అక్క ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा के लाडले बाप दादा के नूरे रतन बाप दादा के कार्य में आपका वीडियो होते हुए वीडियो नहीं दिख रहा दीदी, वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो आपका। ओके ओके, वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ, वीडियो किधर है? వీడియో జస్ట్ మామూలుగా మనం ఆడియో పెట్టుకుంటామే అక్కడే. పర్వాలేదు అక్క, పర్వాలేదు, మీరు అలాగే చెప్పండి. दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा की कार्य में राइट हैंड बन के। हेलो, बाप दादा की कार्य में हर नवीनता, हर सेकंड न्यूनेस लाते हुए स्वयं में और सभी में आप नवीनता लाते हुए, और आपकी विशेषता है सभी का अनुभव सुनना, अनुभव सुनते हुए उन जैसा बनना। आप हमको भी, हम सभी को भी बड़े लोग दादियों जैसा बनाने के लिए इतना डीप सब्जेक्ट कर्मातीत ये स्थिति का, नष्टो महास्मृति स्वरूप स्थिति का बहुत सहज रीति से पीपीटी द्वारा हमको दिखाया, समझाया। सभी को बहुत अच्छा लगा यहाँ। और आपने बुलाया मणिपाल के लिए, हम बिना टिकट मणिपाल भी पहुंच गए, अभी पहुंच गए, लेकिन में भी जरूर आएंगे। शिवन्ना, एक बस लेके आना, सबको लेके। शिवन्ना అక్కకి చెప్పండి 2 నిమిషాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ దీदी, आपको ఓకే అక్క, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు విశేషంగా మనందరం ఈ యొక్క తానే అన్ని చేస్తూ తాను కనపడకుండే బాబాకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छुपाया. సో ఆయన కనపడడు, మనల్ని కనిపించేట్లుగా చేస్తారు. అయితే ఇప్పుడు మన పని కనపడని తండ్రిని కనిపించేట్లుగా చేయాలా. మన ముఖము, మన యొక్క మస్తిష్కము, మన కళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు నిజంగా ఆ అల్లాలో భగవంతుని పిల్లలు అనేది తెలిసేట్లుగా మనం అందరం దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా తీసుకొని వస్తాం. సో అక్కకి ఇన్ఫినిటివ్ థ్యాంక్స్. సమయం, అమూల్య సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు అక్క వాళ్ళకి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్స్ టు బాబా, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ సుజాతక్క, ఫర్ ఆల్
ఎవరెవరు సహయోగి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా బాబా సరెండర్ అక్కయ్యలందరికీ, పరివారం అందరికీ, మణిపాల్ తర్వాత సంబంధిత సేవా కేంద్రాల అన్నయ్యల అక్కయ్యలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మరియు హార్ట్లీ వెల్కమ్ టు పుట్టపర్తి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం అందరం బాబాను తలం చేస్తాం. ओम शांति। ये बहुत खास गाना है, तो ये गाना आपके लिए। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा वैसा पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो मन में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। వీలైతే అప్పుడు ఇంకొకసారి క్లాస్ చేయండి, వీలైతే తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది. అయితే అందరు వినండి. ఈ రోజు క్లాస్ రేపు మళ్ళీ నేను ఇదే క్లాస్ ని తెలుగులో మీకు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాను. మార్నింగ్ క్లాస్ లో అందరూ జాయిన్ కండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. అందరూ ఇంటర్నేషనల్ యోగాలో జాయిన్ అయిపోండి.